Okay, let's continue. So we were talking about research institutes. Yeah. So I was telling कि अभी जैसे ये जो दिख रहा है NCCS, okay, NCCS at Pune, National Center for Cell Science. तो ये research institute के नाम से ही पता चलता है कि what is the work which they actually do. Okay, and if you want to know more about this, the best thing which all of you can do is that website पे जाके इसका check करने का. Okay, come on the screen everyone. You all can log into the website. Google में जाके बस NCCS पुणे डाल दो. Okay, या NCBS बैंगलोर करके डाल दो. You will get a lot of information. अब जैसे इतना बड़ा कैंपस है, इतना बड़ा बिल्डिंग है, so there are many departments within the institute. Each department having its own laboratory या more than one laboratory, where there will be one principal investigator या a scientist under whom there will be many students. Okay, गुजरात के वडोदरा में MS यूनिवर्सिटी करके है, महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा. That's a college, a university as well as a research institute. तो वहां पर भी बॉटनी डिपार्टमेंट के प्लांट एनाटॉमी लेबोरेटरी में मैंने काम किया 6 months. So that laboratory was also very good and sophisticated. So there was one sir who was a scientist, who is a scientist over there, and there were 10 students working in that laboratory. तो गुजरात बायोडाइवर्सिटी बोर्ड के तरफ से उनको प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, रिसर्च प्रोजेक्ट्स. ओके, कि गुजरात के फॉरेस्ट में प्लांट्स का डाइवर्सिटी कितना है उसका एनालिसिस. So they used to tour the entire forest areas of Gujarat for months together. उसका फंडिंग पूरा गवर्नमेंट की तरफ से मिलता था. Hardly anything they had to spend from their pockets. Okay, तो उसका पूरा बायोडाइवर्सिटी का रिकॉर्डिंग, फोटोग्राफी, everything they used to do. प्लांट्स का स्पीशीज आइडेंटिफिकेशन, कलेक्शन ऑफ द सैंपल्स, गेटिंग टू द लेबोरेटरी, उसका मोलिकुलर एनालिसिस करके वेरीफाई करने का. Okay, so many things are there. DNA barcoding. Okay, so all these things they used to do, and one after the other they used to publish papers, research papers. So those team of students had a very good time. डेली अपना बाकी कैसे कॉर्पोरेट ऑफिस होते हैं 10 to 5, 9 to 5 जॉब वगैरह सब, ये भी वैसे ही है. If you are working in the laboratory, you will go in a specified time in the morning, you will work, finish at evening at certain time, and that is how you work. And every month you will get an amount. जैसे जॉब में अमाउंट मिलता है वैसे. That's how this institutes work. So this is given to you so that you are oriented कि जो misconception है रिसर्च और इसके बारे में वो नहीं होना चाहिए. Okay, the only thing that you have to think about is pursue your graduation, and then for a post graduation try to join one of these institutes. India में there are too many institutes in every corner of the country. और भी नए नए institutes बन रहे. So by the time you reach that stage, there will be still more good institutes. Okay, and बाद में क्या कर सकते हो, like this is the time even all of you should start thinking about your careers. थोड़ा लोगों ने सोचना शुरू भी किया होगा, right? So there are many people, I'm telling you, outside this fraternity जिनको आइडिया नहीं है साइंस के बारे में, they will bombard you with too many things. बेटा डॉक्टर बन, बहुत स्कोप है, बेटा ये कर, बहुत स्कोप है. Let them tell, but final decision तुम लोगों का होना चाहिए, because ultimately career is something which you are going to undergo. ठीक है, तो सिर्फ एक ही क्राइटेरिया से सिलेक्ट करो, whatever thing which you find interesting. पसंद है, इंटरेस्टिंग है, मजा आता है काम करने में, वही करो. You will really excel, I'm telling you this. Don't think about any other thing. Okay, तो ऐसे इंस्टीट्यूट्स के बारे में सब फाइंड आउट करके अपने पास लिख के रखो. तो these things will help you in deciding your career. Getting it? And जो इस फील्ड में है उनसे बात करो, not to somebody who is not knowing anything about this. ठीक है, सुने सुनाए बातों पे नहीं जाने का बिल्कुल. Fine. So understood the importance of such research institutes for cell biology and all. Yes, they are very very good laboratories. ठीक है, and the very good facilitators, because अभी कैसा है कि at any stage if you see, obviously funding comes into picture. है ना, ये क्वेश्चन तो दिमाग में आएगा ही कि मतलब इतना बड़ा बड़ा काम करना हो तो पैसे कहाँ से आएंगे. So these institutes, most of them are government institutes.
तो इसका फंडिंग जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से आते हैं. The example which I am seeing in front of me, my own sister, she is working over there. तो उसके लैब में इतने sophisticated instruments हैं, nobody is spending for that. It's only the government who is providing everything, and the instruments are running into lakhs of rupees. Even laboratory में जैसे कंप्यूटर वगैरह सब चाहिए रहता है, बेसिक चीजें, वो भी गवर्नमेंट की तरफ से आते हैं. Nobody has to spend anything. All the chemicals and the जो भी एंटीबॉडीज या ऐसे कुछ भी इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह सब लगते हैं ना, सब कुछ गवर्नमेंट की तरफ से आते हैं. So you get a good help. The only thing is that you should be dedicated to work about it. काम करो तो बहुत कुछ करने मिलेगा. ठीक है? Okay. So that was the background about the condition of a field like cell biology in our country. Okay, okay, there are institutes, people can work on it, but now coming back to your syllabus, cell biology में, that is something I found it very weird. इस पूरा cell biology जो इतना vast portion जितना part है, उसमें से they are talking only about stem cells in your lesson. Okay, so we will restrict to the lesson stem cells. Do you know what are stem cells? When I ask this to my students every time, I get the answer as the cells which are obtained from the stem of plants. Not at all. Okay, नाम है stem cells, but वो plants के stem का नहीं है. Okay, it's like ऐसे समझ लो कि I'll show you this way. Suppose there is a living cell, any living cell. Okay, human beings, plants, or any other thing. A living cell has got a property, okay, that this can give rise to certain organs. Okay, पूरा एक सेल में से पूरा ऑर्गन बन जाएगा. If not organ, then at least a tissue. Nervous tissue, muscular tissue, okay, या leafy tissue. तो एक सेल में से अगर पूरा ऑर्गन या पूरा टिश्यू पूरा डेवलप हो सकता है, then such a cell is called as a stem cell. Okay, a cell which can give rise to all other type of cells, tissues or organs. अभी फॉर एग्जांपल सिंपल टर्म्स में ह्यूमन बीइंग्स का लिवर या किडनी हम लेबोरेटरी में बना सकते हैं क्या? That is the question. What is your answer? Can you make a liver or a kidney in the laboratory? Is it possible? हाँ, एक ऑर्गन बना सकते हैं. Yes. तो जिन सेल्स को लेकर हम But उसमें से ऑर्गन बनाते हैं, यस आनंद सर, ऑर्गन ट्रांसप्लांट के बजाय लाइक डोनेटर से ट्रांसप्लांट करने के बजाय वो लैबोरेटरी में बना के क्यों नहीं ये कर देते? That's what we'll come to that now. We'll see the practical aspects associated with it. Okay. First, let us see the background behind this. कि कुछ सेल्स है जो कैपेबल है कि पूरे ऑर्गन या टिश्यू को जनरेट कर सकते हैं. तो सपोज इफ आई वांट अ लिवर, ठीक है, एक हेल्दी लिवर चाहिए जो एक डैमेज लिवर को रिप्लेस करना है. तो आई कैन, देयर आर टू ऑप्शंस. I can make a liver in the laboratory, or I can take the liver of another healthy person and transplant it. Healthy person मतलब जो dead है obviously. जिंदा इंसान में से liver नहीं ले सकते. Okay, so these are the two options. So दोनों में pros and cons क्या है? कि if I want to take the healthy liver of another dead person, तो first of all कोई भी डेड पर्सन है उसने पहले से प्लेज किया रहना चाहिए कि ओके माय लिवर कैन बी डोनेटेड, और द फैमिली मेंबर शुड बी रेडी टू प्रोवाइड दैट. ओके, दैट इज वन थिंग. तो ऐसे इंसान को हम बोलते हैं डोनर, द वन हु डोनेट्स एनी पार्ट ऑफ द बॉडी. तो इफ देयर इज अ पर्सन हु इज रेडी टू डोनेट, देन द प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड. Another thing, it is not possible that you will find donors very easily. We will come to organ donors after this. Okay, कि organ donation के लिए अभी
every town, every village, every city does not have donors. तो कोई पर्टिकुलर जगह ए में अगर किसी को लीवर का जरूरत पड़ा तो बी या सी कहाँ से तो लीवर मंगवाना पड़ेगा, तो उस वहां से कोई हार्वेस्ट करके ट्रांसपोर्टेशन करके यहाँ तक ला के फिर उसको ट्रांसप्लांट करना. There are too many practical issues associated with it. Okay, to preserve the liver till the time it reaches the person. Even if you see this one, कि अगर मैंने लैब में सेल्स में से ग्रो करके पूरा लिवर जनरेट किया, तो अगर वो हेल्दी लिवर सक्सेसफुली जनरेट हो गया तो वेल एंड गुड, बट वो होने के लिए जो कंडीशंस चाहिए दे आर टू रेस्ट्रिक्टेड. उसके लिए सोफिस्टिकेटेड लेबोरेटरीज चाहिए. द रिसोर्सेस रिक्वायर्ड आर सो कॉस्टली. पैसा चाहिए, है कि नहीं. मार्केट में चॉकलेट बनता है वैसा तो नहीं बोल सकते ना कि 10-12 लीवर बना दिए मार्केट में बेच रहे हैं. इट इज नॉट लाइक दैट. एंड देयर आर मेनी एथिकल इश्यूज एज फार एज दिस ह्यूमन बीइंग्स आर कंसर्न्ड. इसमें बहुत सारे एथिकल इश्यूज आते हैं कि देयर आर पीपल हु विल कमेंट कि नेचर ने अगर अपने हिसाब से बनाया है तो हम क्यों अलग से बनाएं. वी आर गोइंग अगेंस्ट नेचर. तो वैसे भी चीजें आ जाते हैं. And then another thing that comes into picture is the religious debate. कि अगर एक इंसान का कोई ऑर्गन निकल के दूसरे इंसान में डालना है तो there are religious problems with it. Some people do not accept. And as far as religion is concerned, we cannot enforce it. है कि नहीं. And इससे related दूसरा problem ये हो जाते हैं कि there is black market, smuggling of organs, illegal harvesting of organs. कि किसी को बताए बिना उसका कोई ऑर्गन निकाल दिया, उसको बेच रहा है मार्केट में, पैसे कमा रहे हैं. इवन डॉक्टर्स आर इन्वॉल्व इन ऑल दैट. अभी कम हो गया केसेस, बट वो भी बढ़ गया था बीच में. तो so many issues are there in the picture. Okay, so if everything is proper and following an ideal path, then that can be followed. But यहाँ पे we are talking about stem cells. तो stem cells क्या होते हैं? First of all, कि they are special type of cells present in multicellular organisms that can give rise to any other type of cells, tissues or organs. Okay, तो एक स्टेम सेल में से हम बहुत सारे टिश्यूज या ऑर्गन्स बना सकते हैं, बट ये बनाने के लिए टेक्निक जो है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है एंड एवरी टाइम यू डोंट गेट सक्सेसफुल रिजल्ट्स. दैट आल्सो मैटर्स. ठीक है, विल सी दिस. ये देखो. ओके, सो व्हाट इज दिस शोइंग यू? एकदम वहां से शुरू करते हैं. ऑल ऑफ यू हैव स्टडीड नाउ लाइफ प्रोसेस 2, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, राइट. सो देयर इज वन फीमेल गैमेट जिसको हम बोलते हैं ओवम, एंड देयर इज अ मेल गैमेट कॉल्ड द स्पर्म. ठीक है. सो ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन अ zygote is produced. Initially the zygote is just one cell. Here we are talking about human beings. Okay, the zygote is one cell. फिर उस zygote का होगा डिवीजन. One cell will divide to form 2, 2 will divide to form 8, 8 to 16. So there will be one stage in the embryonic development जिसको हम बोलते हैं blastocyst. During human embryonic development, that part you have not studied in the life process 2, but in short I am telling you कि जैसे fertilization के बाद जो पहले बनता है zygote, उस सिंगल जाइगोट में से, सिंगल सेल्ड वाले जाइगोट में से पूरा का पूरा ह्यूमन बीइंग तैयार करना है, अ कॉम्प्लेक्स मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म. सो द फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज देयर शुड बी अ नंबर ऑफ सेल्स. फिर उन सेल्स का डिफरेंशिएशन करके देन देयर विल बी जर्म लेयर्स. तो कुछ लेयर्स हैं जो कुछ पर्टिकुलर ऑर्गन्स बनेगा, कुछ दूसरा लेयर है जो दूसरा ऑर्गन बनेगा, कि सेल्स के अंदर वो डिटरमाइन हो जाएगा. ओके, यू फॉर्म द नर्वस सिस्टम, यू फॉर्म द मस्कुलर सिस्टम, यू फॉर्म द एपिडर्मल सिस्टम, यू फॉर्म द एलिमेंट्री कैनाल. ऐसे करके सेल्स आपस में अपना अपना पोर्टफोलियो ले लेंगे. दैट इज व्हाई इन एन आइडियल कंडीशन when a new baby is formed, the baby is having all the parts and the organs in the right place. That is cell differentiation. Okay, so सबसे पहले जरूरी क्या है? नंबर ऑफ सेल्स शुड बी हाई. तो वो सेल डिवीजन से ही होते हैं. तो सेल डिवीजन होते होते 16, 32 एंड 64 सेल्स वाला जो स्टेज आता है उसको बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट. द स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ब्लास्टोसिस्ट.
एंड ब्लास्टोसिस्ट में होता है इनर सेल मास, एक कवरिंग लेयर होता है सेल्स का एंड एक इनर सेल मास है। ये एम्ब्रियोनिक सेल्स है, इसमें से पूरा एम्ब्रियो और फीटस डिराइव होगा। तो दीज एम्ब्रियोनिक सेल्स, ये जो है ना, दीज आर आवर स्टेम सेल्स। कि इन सेल्स के पास नाउ दीज नंबर्स आर लिमिटेड, 32 सेल्स गिन करो, तो द नंबर्स आर लिमिटेड and we know what stage it is, and we are also aware कि after fertilization in how many days the blastocyst is formed, वो भी हमें पता है। तो that's why we can harvest these cells। इसमें से कुछ सेल्स को मैंने निकाला, जैसे 32 के सेल्स हैं तो एक या दो मैंने निकाला, उसको मैंने ग्रो करने के लिए अलाउ किया, कल्चर किया। दिस इज डन इन द लेबोरेटरी, ओके। एंड देन these cells can give rise to ectoderm, mesoderm, endoderm or the germline cells। वो अपना डिफरेंशिएट करके लेगा। अगर वो ectoderm के सेल्स बने तो then it can give rise to the brain, skin and all these organs। अगर वो mesoderm के सेल्स बने तो मसल, ब्लड, बोन, कार्टिलेज जैसा बनेगा। अगर वो एंडोडर्म का बना तो अंदर के ऑर्गन्स, लंग्स, लिवर, गट, किडनीज एंड ऑल। एंड जर्म लाइन बना तो रिप्रोडक्टिव सेल्स बनेगा। So that means ये डिफरेंशिएशन इस स्टेज में हो चुका है। So these embryonic stem cells are the ones on which we do research, or these are the ones on which we take out and preserve it separately so that we can produce whatever organs we want out of it। तो अगर सपोज अभी जैसे एग्जांपल हमने लीवर का लिया था, तो इफ आई वांट अ लीवर इन द लैब, तो मैं ऐसे एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल को लूंगा जो एंडोडर्म बनाता रहेगा, एंड आई विल कल्चर दैट, जिसमें से मुझे लिवर मिलेगा। If I want a new skin tissue to be produced, so I will take an embryonic stem cell which is producing the ectoderm। If I want a new muscle to be produced, I will take a mesoderm, ऐसे करके। Have you all understood this? Yes students, यहाँ तक अच्छे से समझा? Any doubt? सर Yes, बोलो। एक पर्सन का दूसरे पर्सन को चलता है क्या Again, it is not that easy। ट्रांसप्लांट किया तो? It is not that easy कि from any person you can donate to any other random person। उसके भी टेस्ट वगैरह होते हैं, कंपैटिबिलिटी टेस्ट वगैरह सब, ओके। तो वो अगर दोनों मैचिंग रहेगा तो ही डॉक्टर्स ट्रांसप्लांट करेंगे। सिंपल इट। अभी जैसे ब्लड ग्रुप का तुम लोग को पता है कि एनी पर्सन कैन नॉट डोनेट ब्लड टू एनी अदर पर्सन, वो ब्लड ग्रुप मैच होना चाहिए, है ना, अदरवाइज इट विल रिजल्ट इन द डेथ ऑफ द रेसिपिएंट। सेम वे ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में भी वो सारे फैक्टर्स होते हैं, ओके। दैट इज नॉट वेरी इजी। अभी फॉर एग्जांपल किडनीज, नॉर्मली अ पर्सन हैज 2 किडनीज, तो 1 किडनी कैन बी डोनेटेड, उससे डोनर का भी लॉस नहीं होता, द पर्सन कैन सर्वाइव। तो डोनर और रेसिपिएंट दोनों का सारे टेस्ट करके मैच करके देखेंगे कि वेदर द पर्सन इज फिट टू बी अ डोनर एंड वेदर द पर्सन इज सुटेबल टू बिकम अ रेसिपिएंट। तो मैच होगा तो ही देंगे, अदरवाइज नहीं, ठीक है। तो कमिंग बैक टू दिस, नाउ दिस इज स्टेम सेल। उसमें से क्या क्या सेल्स बना सकते हैं, देखो न्यूरॉन के सेल्स बना देंगे तो वी कैन प्रोड्यूस अ ब्रेन, ओके। एंटेरोसाइट्स अगर बना देंगे तो वी कैन मेक इंटेस्टाइन्स। हेपेटोसाइट्स अगर बनाते हैं तो लिवर बना सकते हैं। इट इज नॉट दैट कि आज मैंने सेल रख दिया तो कल मेरे पास वहां लिवर तैयार पड़ा रहेगा। इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, एट एवरी स्टेज वन हैज टू चेक, राइट। कार्डियक सेल्स बनेंगे तो हार्ट बना सकते हैं, ऑस्टियोसाइट बना दिया तो बोन बना सकते हैं। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी। आई एम नॉट टेलिंग कि ये सब एकदम इजीली सक्सेसफुल है, पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं है, दैट्स द रिसर्च गोइंग ऑन। जो इंस्टीट्यूट हमने देखा ऐसे जगह पर इस पर रिसर्च होता है, ओके। ट्रायल एंड एरर मेथड्स चलते रहते हैं कि ऐसा प्रोड्यूस हुआ कि नहीं, बन सकता है कि नहीं, okay, too many problems are associated with it, so one by one they will try to work it out and there are people required। and ये बहुत ही recent science है, stem cells के बारे में पहले इतना नहीं जानते थे लोग, okay। now if you compare to this, now here we are talking about human beings, but you know very well कि plant के जो cells होते हैं, plants और animals में ये सबसे बड़ा difference है। there is a word called totipotency, okay।
प्लांट्स के लिए एक वर्ड होता है टोटिपोटेंसी. इट हैज कम फ्रॉम 2 वर्ड्स, टोटल पोटेंशियल. ओके, 1902 में ये डिस्कवर हुआ था ये प्रॉपर्टी. प्लांट्स के सेल्स में एक प्रॉपर्टी होता है कि पूरे प्लांट में, आई एम टॉकिंग अबाउट एनी प्लांट, फॉर एनी प्लांट यू टेक एनी लिविंग टिश्यू, उसका रूट या स्टेम या लीफ या फ्लावर या फ्रूट, एनीथिंग, but it should be a living cell. The most common tissue that is taken is the leaf. Okay, so leaf का कोई भी एक सिंगल टिश्यू, अभी नॉर्मली a leaf does not take part in reproduction, बट मैंने एक प्लांट का एक पत्ते का थोड़ा सेल्स लेकर उसमें से पूरा प्लांट अगर मैंने बना दिया तो इट इज पॉसिबल. प्लांट्स कैन डू दैट. तो पूरे प्लांट के सारे लिविंग सेल्स में वो प्रॉपर्टी होता है कि वो पूरा का पूरा प्लांट बना सके, पूरा ऑर्गेनिज्म. बट एनिमल सेल्स डू नॉट हैव दैट प्रॉपर्टी. एंड एक तरफ से अच्छा है कि नहीं है. इमेजिन यू टेक आउट योर स्किन एंड पुट इट इन द लैब, यू विल गेट एन एंटायर ऑर्गेनिज्म आउट ऑफ इट. ऐसे अगर इंसान बनने लग गए तो इमेजिन व्हाट विल हैपन टू द वर्ल्ड. ओके, बट एनिमल्स में कुछ जो सेल्स होते हैं उनमें प्रॉपर्टी होता है कि दे कैन गिव राइज टू टिश्यूज एंड ऑर्गन्स. ओके, द प्रॉपर्टी इज सिमिलर टू दिस, बट दे कैन गिव राइज टू सर्टेन टिश्यूज एंड ऑर्गन्स. उसको बोलते हैं प्लूरिपोटेंसी. So if totipotency is for plants, pluripotency is for animals. Okay, for plants में total potential है कि पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म ही बना दे. तो प्लांट टिश्यू कल्चर करके एक टेक्निक है, लेबोरेटरी में पूरे पूरे प्लांट्स जनरेट करते हैं. को सपोज अभी कुछ प्लांट्स होते हैं जिसके सीड्स नहीं बनते या जल्दी से प्रोपोगेट नहीं होते या बहुत ही रेयर या एंडेंजर्ड स्पीशीज है, ज्यादा नंबर में है ही नहीं. तो सच प्लांट्स वी कैन टेक एंड यू कैन डू प्लांट टिश्यू कल्चर एंड इंक्रीज द नंबर ऑफ दोस प्लांट्स. तो मैंने एक पत्ते का एक सेल लेकर 1000 प्लांट भी बना सकता हूं उसमें से. दैट इज पॉसिबल फॉर प्लांट्स, वो है टोटिपोटेंसी. बट फॉर एनिमल्स इट इज नॉट पॉसिबल दैट यू विल टेक वन हेयर और समथिंग फ्रॉम द एनिमल एंड यू विल क्रिएट एन एंटायर एनिमल आउट ऑफ इट. बट एनिमल्स में जो ये स्टेम सेल्स हैं, these are said to be pluripotent. These are said to be pluripotent. They can generate new cells or organs or tissues out of it. Did you understand this point, everyone? Okay, any doubt? धीरे धीरे हम लोग थोड़े कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स में जा रहे हैं, तो कुछ भी नहीं समझ रहा हो तो पूछ लो. Anyone? Shall we move ahead? Next point. ठीक है. Okay. Then see. Stem cells कहाँ मिलेंगे? Okay, in the case of human beings, distribution and location of stem cells. ठीक है. Firstly, जैसे अभी ब्लास्टोसिस्ट मैंने बताया. Now you understood what is blastocyst. Okay, जो ब्लास्टोसिस्ट बनने का जो प्रोसेस है फ्रॉम द जाइगोट टू द ब्लास्टोसिस्ट, इस प्रोसेस को बोलते हैं ब्लास्ट्यूलेशन. दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ब्लास्ट्यूलेशन. ठीक है, तो प्रेगनेंसी के फर्स्ट वीक में ये ब्लास्टोसिस्ट तैयार हो जाता है. यू कैन सी हियर 6 days कि जब भी फर्टिलाइजेशन हुआ, the zygote, the sperm meets the egg and the zygote is produced. From then up to the 5th or the 6th day, the blastocyst is formed. So this is one place from where you can take the stem cells. ठीक है, from the embryo. Another place where you can get the stem cell is the umbilical cord. Now you know what is umbilical cord. क्या होता है ये? You know umbilical cord? बोलो. What is the umbilical cord? It connects the placenta with the baby. Yes. Okay, whenever a new baby is born, the baby is always born with an umbilical cord connected to its navel. Doctors बाद में उसको कट करके निकालते. But this is the place through which it is connected to the mother.
तो जैसे ही पैदा हुआ उसका जो अम्बिलिकल कॉर्ड है, नाउ वी नो दैट इट कंटेन्स स्टेम सेल्स। तो ये स्टेम सेल्स को हम पहले निकाल के रखें, इंस्टेड ऑफ डिस्कार्डिंग इट, पहले पूरा फेंक देते थे, डिस्पोज करते थे। ओके, ये सोच करके बच्चा पैदा हो गया तो अब उसका जरूरत नहीं है करके। बट नाउ वी नो दैट दिस अम्बिलिकल कॉर्ड कंटेन्स द स्टेम सेल्स। तो अभी जब पता है तो डॉक्टर्स क्या एडवाइस करते हैं कि जब बच्चा हुआ तो विदाउट कॉजिंग एनी हार्म टू द बेबी, वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग टू द बेबी, उसका जो अम्बिलिकल कॉर्ड है उसके सेल्स को प्रिजर्व करके रख लो। वी विल कम टू समथिंग कॉल्ड स्टेम सेल बैंक एंड ऑल। तो अपने ही बच्चे के स्टेम सेल को प्रिजर्व करके रखो कि फ्यूचर में कभी जरूरत पड़ा तो उसी का स्टेम सेल यूज करके उसी के लिए अगर कुछ ऑर्गन या टिश्यू बना सकते हैं। सो वी डोंट इवन नीड टू लुक फॉर एनी डोनर या मैचिंग वगैरह का कंपैटिबिलिटी का प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज ये उसी के सेल्स, दैट इज पॉसिबल। तो डॉक्टर्स क्या करते हैं, अगर पेरेंट्स जो है वो परमिशन दे देते हैं तो अम्बिलिकल कॉर्ड के सेल्स को निकालकर प्रिजर्व करते हैं, तो कभी भी फ्यूचर में यूज कर सकते हैं। और इफ एनी अदर पर्सन विल आल्सो रिक्वायर, एंड अगर डोनर बन के मैच हो गया तो दिस कैन बी गिवन टू सम अदर पर्सन आल्सो, दैट इज आल्सो पॉसिबिलिटी। तो हर तरह से देखा जाए तो वो यूजफुल है, दैट इज वन फेस। देन यू नो रेड बोन मैरो। ओके, जो लॉन्ग बोन्स होते हैं, बोन्स के अंदर देयर इज अ फ्लूइड प्रेजेंट जिसमें ब्लड के सेल्स बनते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड ऑल। तो वो लिक्विड को बोलते हैं बोन मैरो। तो देयर इज समथिंग कॉल्ड येलो मैरो एंड अ रेड मैरो। तो जो रेड मैरो है बोन के अंदर, दैट कैन बी अ सोर्स ऑफ स्टेम सेल, बिकॉज इसमें भी डिवाइडिंग सेल्स होते हैं, आरबीसी वगैरह बनते रहते हैं। तो these cells can also become a source of stem cells. Got it? Okay, the red bone marrow. Are you aware about adipose tissue? Adipose tissue पता है? Adipose tissue का मतलब है the tissue made up of cells which are having lot of fats, soft and cushioning tissue. उसको adipose tissue बोलते हैं. So there are many places in our body where there is a good amount of adipose tissue present. It is always under the skin and surrounding certain organs जिसमें फैट्स जमा होते हैं। ओके, जैसे प्रीवियस लेसन में हमने बहुत सारे डेयरी प्रोडक्ट्स के बारे में देखा, चीज एंड ऑल। तो इफ यू कंज्यूम टू मच अमाउंट ऑफ इट विदाउट डूइंग लॉट ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, तो वो कंट्रीब्यूट करेगा एडिपोज टिश्यू बनाने में। ओके, तो बटर, घी, चीज एंड ऑल कैन ऐड टू ऑल दिस। तो देयर आर मेनी प्लेसेस इन द बॉडी वेयर देयर आर फैटी टिश्यूज प्रेजेंट, जैसे स्टमक, विसरल ऑर्गन्स, ओके, नियर द surrounding the heart for protection, under the skin. ओके, तो जिसका मोटा चमड़ी रहता है ना, वो एडिपोज टिश्यू वाला है। ओके, अ पर्सन हु इज फैट एंड ओबीस, दे हैव लॉट ऑफ एडिपोज टिश्यू, सो दे आर वेरी वेल इंसुलेटेड, वी कैन से। ओके, कभी भी ऐसा किसी को देखे तो बोलने का यू आर वेरी नाइसली इंसुलेटेड। तो ठंडी वाले मौसम में उसके लिए बहुत फायदा है, अंदर हीट कंजर्व हो जाते हैं। ओके, and then there are places like your palms, okay, or the cheeks, the mammary glands. These are the places where adipose tissues are present in large amounts. So adipose tissue can also be a source of stem cells. तो stem cells कहाँ पे मिल सकते हैं? Umbilical cord, blastocyst, red bone marrow and adipose tissue. So if somebody wants to harvest the stem cell, these can be the possible places. Have you understood now? Yes. Speak up, everyone. आज प्राची नहीं आई, हाँ। दीक्षा भी नहीं है आज। एनी आइडिया? दीक्षा, प्राची दोनों ने बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मिस की आज। दीक्षा को ठीक नहीं है। अरे बाप रे, प्राची? प्राची का नहीं पता। अच्छा, ठीक है, एनीवेज ये रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। ओके, लेट्स डू वन थिंग, फिर से डिस्कनेक्ट करके ज्वाइन बैक करते हैं।
so we can go on for another 20-25 minutes. ठीक है?